Hello class, today I am going to teach you your book Moments, chapter 4 in the Kingdom of Fools part 2. In the previous class I have already explained you that uh, this chapter discuss discuss about a state where the king and his ministers are not intelligent. That means that they are not wise and intelligent. When this kind of people rule in the kingdom, then what all happens has been told in this story. मैंने आपको कल बताया था कि ये जो एक कहानी है, ये कहानी के अंदर एक स्टेट, कर्नाटक के एक स्टेट का एक फोक टेल है, और वहाँ पर बताया गया कि कैसे राजा और उसके मिनिस्टर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं थे, मूर्ख थे, और वो ऐसे में वो कैसे अपने देश का शासन चलाते थे, ये इस स्टोरी के अंदर था. फिर देर इज़ ऑल्सो ए स्टोरी इन दिस स्टोरी. इस कहानी के अंदर भी एक कहानी थी दैट अ thief younger brother went to the kings and complained that his brother was following the ancient trade. While he was working, the wall fell on the head and he died. The thief's brother was taking advantage of the king's foolishness. He said that the merchant whose wall has fallen down on his brother was the culprit. He should have made a strong wall. He requested the king to punish the merchant and get the कंपनसेशन फॉर हिज फैमिली. फिर इस कहानी के अंदर एक कहानी ये भी थी कि एक जो चोर है, वो उसका भाई चोरी करते समय एक दीवार उसके सिर पे गिर जाती है तो वो मर जाता है. और फिर वो चोर का भाई जो है वो राजा के मूर्खता को जानकर उनसे कंप्लेन करता है कि या तो उस मर्चेंट को बुलाया जाए, वो दोषी है क्योंकि उसने इतनी कमज़ोर दीवार बनवाई थी, उसकी दीवार मजबूत नहीं थी, और उसको कंपनसेशन दिया जाए उसकी फैमिली के लिए. सो व्हाट हैपन इन द स्टोरी नेक्स्ट we are going to study in the part 2. As soon as the merchant appeared, the king asked his name. Then the king asked him whether he was at home when the dead man, the thief, was bulging his house. The merchant replied that he was at home only. The thief made a hole in the wall and entered in his house, and when he was trying to go out, the wall fell down on him because it was weak. Then the king told the merchant that he was guilty. He did wrong due to his weak wall. The thief died and now he would be punished. और जब वो जो मर्चेंट रहता है, जब वो मर्चेंट जब राजा के सामने आता है तो राजा उससे उसका नाम पूछते हैं और उसको बताते हैं कि क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा था जो तुम्हारे घर में बर्गलिंग के लिए गया था. तो मर्चेंट ने बोला नहीं, मैं उस समय घर पर था और उसने मेरे दीवार में एक हॉल बनाया, अंदर घुसा, और फिर जैसे ही वो बाहर जाने लगा तो दीवार जो थी वो उसके सिर पे गिर गई क्योंकि वो दीवार कमज़ोर थी. तो राजा ने उसको बोला कि ठीक है, तो फिर ये तुम्हारा अपराध है, तुमने गलत किया कि तुमने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई, और जो चोर था वो मर गया और अब तुमको सजा दी जाएगी. The merchant pleaded in front of the king, request that my lord, it was not my fault. The wall was weak because the person who made the wall did not construct it properly. Hence you should punish him. And further he added that the wall was made during his father's time. The person who built it was very old. He knew him as he lived nearby. फिर उसने मर्चेंट ने बड़ी प्रार्थना की राजा से, और राजा से प्रार्थना करके बोला कि मेरी गलती नहीं है, वो जो दीवार थी वो कमज़ोर थी, तो ये तो उस व्यक्ति की गलती है जिसने इसको अच्छे तरीके से नहीं बनाया. और फिर उसने कहा, बाद में एक बात और उसने बोली कि ये जो दीवार थी मेरे पिताजी के समय पे बनी हुई दीवार थी, और जिस पर्सन ने इस दीवार को बनाया वो बहुत बूढ़ा हो गया, वो मेरे पास रहता है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ. So the king sent the soldiers to call the bricklayer who built the wall. They tied his hands and feet and brought him in the king's palace. The king asked him that did he build the wall, and he replied that yes, he did. The king said that the man had built a weak wall. The wall fell on the poor thief's head and killed him. The bricklayer would be punished for this with death. फिर राजा अपने सिपाहियों को भेज के उन्होंने उस जिसने वो ईंटें सजाई थी, जो ब्रिक लेयर था, उसको बुलाया जिसने वो दीवार बनाई थी, और वो उसको हाथ और पैर बांध के उसको राजा के दरबार में लाया गया. राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने ये दीवार बनाई थी. उसने रिप्लाइड में बोला कि हाँ. राजा ने उससे कहा कि अगर तुमने इतनी कमज़ोर दीवार बनाई कि ये दीवार चोर के सिर पे लगी और वो मर गया, और इसके लिए अब तुमको डेथ की सज़ा तुमको दी जाएगी. एवरीवन इज़ पासिंग
on the blame to another person. When the king was about to pass an order to execute the bricklayer, he requested the king to listen to him. और हर कोई अब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम को आगे बढ़ा रहा था। फिर राजा जैसे ही सज़ा देने लगा तो उस ब्रिकलेयर ने रिक्वेस्ट की कि कृपया आप मेरी बात को तो सुने। ही अग्रीड दैट ही डिड नॉट मेक द वॉल प्रॉपरली, इट वॉज बिकॉज ऑफ अ गर्ल हु वॉज रोमिंग अराउंड इन द street and her anklets were making a jingling sound. Due to her anklets jingle sound, he was not able to concentrate on his work and so built a weak wall. It was not his mistake, it was the fault of the girl. He added that he knew where this dancing girl lived. She should be punished instead of him. फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि आप मेरी बात को सुनिए कि मैं मानता हूँ कि ये दीवार मैंने अच्छे से नहीं बनाई और इसका कारण एक लड़की थी जो कि गली में वो पायल पहन के घूम रही थी और उसके पायल की आवाज़ से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था और इस वजह से मैं दीवार को अच्छे से नहीं बना पाया, दीवार कमज़ोर हो गई। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये गलती तो उस लड़की की है। तो अगर आपको सज़ा देना चाहते हैं तो आप उस लड़की को दीजिए, मैं उस लड़की को अच्छे से जानता हूँ, सज़ा मुझे मत दीजिए। The king was satisfied with the bricklayer's explanation. He was convinced with him. He tells that his case is very complicated and will not be able to solve it so easily. He ordered his messenger to get the dancer girl. राजा उसकी बात से संतुष्ट हो गए, जो कुछ भी उस ब्रिकलेयर ने बताया, और फिर उन्होंने कहा कि ये केस इतना आसान नहीं है, इसको इतनी आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता। और फिर उन्होंने अपने मैसेंजर्स को बोला कि जाओ तुम उस जो गर्ल्स थी जो बार बार उस गली में घूम रही थी, तो उस डांसर गर्ल को तुम लेकर आओ। The dancing girl had become an old woman and she was trembling as she entered the court. The king asked her that many years ago was she dancing and roaming around in the lane while the bricklayer was constructing the wall. Her movement distracted him. She confirmed him. He told her that as she was roaming around with her anklets jingling, it distracted the bricklayer. Due to this, he could not do his work properly. He built a bad wall, which fell on the thief and he was killed. It was because of her that the thief died and she would be punished with death. और जब वो औरत को लाया गया, क्योंकि वो बहुत पहले की बात थी, तो वो औरत भी, जो लड़की भी जो थी, वो लड़की बूढ़ी हो गई थी। तो जब वो आई तो एक वो बूढ़ी सी महिला थी और वो जैसे ही दरबार में घुसी तो वो कांपने लगी। राजा ने उससे पूछा कि बहुत समय पहले क्या तुम इस लाइन में, जब ये ब्रिकलेयर काम कर रहा था, दीवार बना रहा था, तो तुम यहाँ वहाँ घूम रही थी? उसके तुम्हारे मूवमेंट से वो विचलित हो गया। और उस जो औरत थी उसने भी हाँ बोला। फिर राजा ने उसको बोला कि तुम्हारे उस घूमने की वजह से और तुम्हारे पायल की आवाज़ की वजह से ये जो ब्रिकलेयर था, इसका ध्यान भ्रमित हो गया और इसने अपने काम को अच्छे से नहीं किया और इसने एक बहुत बड़ी ही बुरी दीवार बना दी और वो जो दीवार थी वो चोर के सिर पर आके गिरी और वो मर गया और ये तुम्हारे ही कारण उस चोर की मृत्यु हुई है, इसीलिए अब तुमको मौत की सज़ा दी जाएगी। The dancing girl transferred the blame onto other person. She said that she was roaming around in this lane again and again because she had to visit the goldsmith shop. She had given some gold to him to make jewelry out of it. He was a dishonest person. He was making excuses for not making her ornaments in time. He kept on asking her to come after some time. Due to this, she had to go to his house at least a dozen times. So the dancing girl said that it was the fault of the goldsmith. फिर उस औरत ने कहा कि हाँ ठीक है, उसने किसी दूसरे को ब्लेम किया। उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं लाइन में बार बार घूम रही थी क्योंकि मुझे सुनार की दुकान पर जाना था। मैंने उस सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था उससे कुछ जेवर बनाने के लिए, लेकिन वो बड़ा ही बेईमान व्यक्ति था और सही समय पर उसने मेरे ज्वेलरी नहीं बनाई और वो मुझे बार बार बहाने करता रहा। इस वजह से मुझे कई दर्जनों बार मुझे अपने घर जाना पड़ा और वापस उसकी दुकान तक आना पड़ा। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, अगर ये किसी की गलती है तो सुनार की गलती है। Then further, this dancing girl says that when the bricklayer saw her and got distracted, it was the fault of the goldsmith because of
whom she was roaming in the lane again and again. उस महिला ने कहा कि अगर ये ब्रिकलेयर जो अगर अच्छे से काम नहीं कर पाया तो इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण तो वो सुनार है जिसकी वजह से मुझे बार बार यहाँ घूमना पड़ा. Now the king says that the poor dancing girl was totally right. He thought a lot and finally said that now they knew who the real culprit was. He ordered to bring the goldsmith. The bailiffs in the king's court went in search of the goldsmith and brought him in the court. The goldsmith was hiding inside his shop as he feared being arrested. When he was brought in front of the king, he told his side of the story. अब क्या हुआ, राजा को लगा कि नहीं, वो जो डांसिंग गर्ल है जो वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, वो गलत नहीं बोल रही है. उन्होंने सोचा कि असली जो गुनाहगार है वो तो कोई और है. फिर राजा ने अपने जो उसके बैलिफ्स मतलब जो उसके मैसेंजर्स थे, उन्होंने अपने मैसेंजर्स को बोला कि जाओ उस सुनार को पकड़ कर लेके आओ, उसको कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ. और जो सुनार था वो छुप कर अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था क्योंकि उसको गिरफ्तार होने का डर था. लेकिन फिर भी उसको कैसे भी राजा के सामने जब लाया गया तो उसने फिर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया. ही सेड दैट द डांसिंग गर्ल वॉज राइट. ही मेड मैनी एक्सक्यूजेस sorry, and made her visit his shop again and again, but it was not his fault. He had an order from a rich merchant and they had a wedding at their place and were in a hurry to get their order, and that is why the dancing girl's work was getting delayed. King asked the goldsmith to name the rich merchant. अब उसने अपनी एक नई कहानी सुनाई. उसने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने इस महिला को बार बार इसकी ज्वेलरी नहीं बनाई और उसको बार बार मैंने अपनी दुकान पे बुलाया, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है क्योंकि एक बहुत ही जो रिच मर्चेंट था, बहुत ही धनवान जो व्यापारी था, उसके यहाँ पर शादी थी और मुझे उसका ऑर्डर पूरा करना था. और उसके ऑर्डर को सही समय पर पूरा करने के लिए मैं इस महिला के काम को नहीं कर पाया. तो ये मेरी गलती नहीं है. अगर आपको सज़ा देनी है तो आप किसको बुलाइए, आप उस धनवान व्यापारी को बुलाइए. आगे कहानी, ये दिस चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, थोड़ा लंबा चैप्टर है. कहानी में और क्या होता है और अंत में सज़ा किसको मिलती है, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. If you have any problem in the explanation of part 1 and part 2, you can ask me, try to solve the question and do it in your fair copy. Till then, goodbye.